Welcome students. Now we discuss about process capability ratio. It is frequently convenient to have a simple quantitative way to express process capability. One way to do so is through the process capability ratio, which is Cp is equal to USL minus LSL upon 6 sigma, where USL is the upper specification limit and LSL is lower specification limit respectively. Cp and other process capability ratio are used extensively in industry. Process capability ratio of off-center process. The process capability ratio Cp does not take into account where the process mean is located relative to specification. Cp simply measure the spread of the specification relative to 6 sigma spread in the process. For example, the top to normal distribution. Normal and process capability ratio. An important assumption underlying our discussion of the process capability and the ratio of Cp and Cpk is either usually interpretation is based on normal distribution of process output. If the underlying distribution is non-normal, then as we previously cautioned, the statement about expected process fallout attribute to a particular value of Cp or Cpk may be in error. More about process centering. The process capability ratio was initially developed because Cp does not adequately deal with the case of process with mean m that is not centered between the specification limit. However, CPK alone is still an inadequate measure of process centering. Next topic is Six Sigma. It is a quality management methodology used in help business improvement current process, product or service by discovering and eliminating defect. The goal is to streamline quality control in manufacturing or business process so there is a little to no variance throughout. Six Sigma methodology. In practice, Six Sigma follows one or two sub methodology DMAIC or DMADV, where first is DMAIC. DMAIC mean define, measure, analyze, improve or control. First is the define the problem. The methodology included 5 phases, each represent a letter in DMCNMs. First, define the problem, the customer, the project requirement and the ultimate goal and expectation of customer. तो फर्स्ट में हम क्या डिफाइन करते हैं कि कस्टमर, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है और एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर क्या चीज़ है, उस चीज़ को हम इसमें डिफाइन करते हैं. सेकंड है मेजर परफॉर्मेंस ऑफ द करंट प्रोसेस बाय स्टेबलाइजिंग ए डाटा कलेक्शन प्लान टू डिटरमाइन डिफेक्ट एंड गैदर मैट्रिक्स. Third is analyze the process to establish root cause of variation and defect to identify issue with the current strategy that stand in way of the end goal. Improve the process by eliminating the root cause of defects through innovative solution. Next is control the new process to avoid falling into old habits and to ensure it stay on track. Six Sigma DMADV. Each word has its special meaning, also known as Design for Six Sigma, included 5 stages. D means define, M means measure, A means analyze, D means design, or V means verify. This process is used when our business is set up for setup.
जो हमारा बिजनेस होगा, अगर उसको सेटअप कर रहे हैं, नया नया बिजनेस है, तो उसके लिए हम DMADV का यूज़ करते हैं। और अगर हमारा पहले से ही बिजनेस सेटअप है तो उसके लिए DMAIC प्रोसेस का यूज़ करते हैं। सबसे पहले डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। डिफाइन रियलिस्टिक गोल दैट सूट द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट और द बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको हम पता लगाएंगे, भाई कस्टमर चाहता क्या है, ठीक है ना, कि किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, किस तरह की सर्विसिंग चाहता है, किस तरह की उसकी स्ट्रेंथ चाहता है, किस तरीके का डिज़ाइन, कलर, या फिर जो भी उसके अंदर पार्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं उसके अंदर नॉइज़ वाइब्रेशन नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर चाहता है। सबसे पहले हम उसकी रिक्वायरमेंट को पता लगाएंगे और उसी के हिसाब से बिजनेस स्ट्रेटेजी को तैयार करेंगे। सेकंड, मेजर एंड आइडेंटिफाइंग द कस्टमर critical to quality requirement and translate them into clear project goal। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो कस्टमर को क्रिटिकली, यानी कि जो कस्टमर का, कि कुछ कस्टमर्स के लिए को चाहिए होती है क्रिटिकल क्वालिटी चाहिए होती है, उसके लिए स्पेसिफिक मटेरियल कैसा होना चाहिए, उसका साइज़ कैसा होना चाहिए, उसकी शेप कैसी होनी चाहिए, उसका डिज़ाइन, उसका कलर। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी। इनको आइडेंटिफाई करेंगे और इनको क्या करेंगे, एक ट्रांसलेट करके इनकी सारी रिक्वायरमेंट को इनटू ए क्लियर प्रोजेक्ट गोल। और हमारा एक गोल तय करेंगे कि हम लोगों को ये चीज़ें तो करनी, डेफिनेटली कंप्लीट करनी ही करनी है। देन एनालाइज मल्टीपल ऑप्शंस एंड अल्टरनेटिव फॉर द कस्टमर अलॉन्ग विद द एस्टिमेट टोटल लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट। अब हम, जो हमारा कस्टमर है उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, उसकी जो लाइफ साइकिल है कि कितने टाइम के लिए, कितना टाइम लगेगा हमको इस प्रोडक्ट को तैयार करने में, कस्टमर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उसको एस्टिमेट करेंगे। एनालाइज करने के बाद एस्टिमेट करेंगे। देन डिज़ाइन द प्रोसेस at a high level before moving on to a more detailed version that will become prototype to identify error and make modification। अगर हमारे प्रोडक्ट को कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो हम लोग क्या करेंगे कि जो मार्केट में पहले से अवेलेबल है उन प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे। करने के बाद हम क्या करेंगे कि उस प्रोडक्ट को हमने तैयार कर लिया, अब उस प्रोडक्ट के अंदर डिटेलिंग की जाएगी कि उसको फिनिशिंग इतनी अच्छी दिखाई देगी कस्टमर को कि वो खुद ही अट्रैक्ट होने लगे उस प्रोडक्ट के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोटोटाइप तैयार करेंगे। फिर उस प्रोटोटाइप के अंदर हम देखेंगे कौन कौन सी एरर्स आ रही है। फिर उन एरर्स को हम लोग क्या करेंगे, दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें दोबारा से रीडिज़ाइनिंग करेंगे और उसमें मॉडिफिकेशन किया जाएगा। देन वो कस्टमर में सेल होने के लिए तैयार होगा। वेरीफाइंग that the final irritation of the product or process is approval by customer and client whether internal or external। अब जो हमारा कस्टमर है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, वेरीफाई होना। अब क्या होता है कि आप मार्केट में कुछ प्रोडक्ट आते हैं जो आपको सैंपल के लिए फ्री में मिल जाते हैं। अब वो किस लिए दिए जाते हैं कि कस्टमर की फीडबैक ली जाए कि हमारे प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको रखने में क्या प्रॉब्लम है, उसके डिज़ाइन में क्या प्रॉब्लम है, उसको यूजिंग करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका कलर अच्छा है कि नहीं है। जैसे कि आप देखते होंगे कुछ मोबाइल का आपको रिव्यू दिखाया जाता है, उसके अंदर दिखाया जाता है कि ये गोरिल्ला ग्लास है, इसकी स्किन कमज़ोर है, ये इस साइज़ का है, ये उस साइज़ का है, इसका कलर भी ऑप्शन अच्छा नहीं मिल रहा है आप लोगों को, उसमें रैम इतनी है, उसमें वो इतनी है। तो कस्टमर क्या करता है कि जो पहले से प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है उनके साथ कंपेयर करता है प्रोडक्ट को।
जब वो कंपेयर करेगा, जब उस प्रोडक्ट को, हमारे प्रोडक्ट को कंपेयर करेगा और उस पर कुछ उसको डिफ़िकल्टीज भी आएंगी, कुछ उसको अच्छा भी लगेगा चीज़ों को, तो अच्छी चीज़ें भी बताएगा और बुरी भी बताएगा। जैसे अगर हम किसी कार की बात करते हैं, मार्केट में कोई कार आई, लॉन्च हुई, अब वो जिस सेगमेंट की है, चाहे वो सेडान है, चाहे वो बात करें हम एसयूवी है ना, तो इन सारी कार्स में क्या होगा, जब वो लॉन्च होगी वो किसी ना किसी सेगमेंट से में मैच होगी, तो मार्केट में पहले से जो अवेलेबल होगी उसके डिज़ाइन का कंपेयर करेंगे सबसे पहले लोग, फिर उसकी एवरेज का कंपैरिजन करेंगे, फिर उसके सिलेंडर की पावर का कंपैरिजन करेंगे, कलर का कंपैरिजन करेंगे, वाइब्रेशन का कंपैरिजन करेंगे, हैंडलिंग का कंपैरिजन करेंगे, साइज़ का कंपैरिजन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, कस्टमर इन चीज़ों पर फोकस करता है, यानी कि कस्टमर्स को वेरीफाई करता है। ठीक है, तो दो तरीके से वेरिफिकेशन होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वेरिफिकेशन तो ऐसा होगा जो कंपनी में ही लोग होंगे जो उसको उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, तो वो खुद ही बताने लगेंगे कि इसमें जो बाहर आप देखोगे कि बाहर मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कैसी क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है और हमारे जो प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या फैसिलिटीज़ है। ठीक है ना, तो वो क्या होता है कि वो हम कंपनी के अंदर भी की जा सकती है, और दूसरा एक्सटर्नल तो मार्केट में होगी होगी। ठीक है ना, तो एक्सटर्नल उतारना थोड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि कस्टमर को अगर वो चीज़ पसंद नहीं आई, तो आजकल क्या होता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारी वेबसाइट्स है, लोग उसके ऊपर डाल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसे ख़राब है वैसे ख़राब है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक फ़ोटो दिखाता है जिसके अंदर एक जर्मन साइकिल एक चाइनीज़ कार के अंदर घुस जाती है। ठीक है, टक्कर में क्या होता है कि उसका पहिया तक नहीं मुड़ता है और कार का बोनट पिचक जाता है, ठीक है ना, दब जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है कि वैल्यू गिरा देती है कंपनी की, कि कंपनी कैसा प्रोडक्ट बना रही है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है ना। तो ये हमारे पास होता है 6 सिग्मा DMADV। ओके, थैंक यू वेरी मच।